That is good. Let's see who is correct, who is not. A, B, C can do a piece of work in 24, 30, 40 days. Fine. Let us apply our method. Because अगर हम मेथड अप्लाई करें तो ऐसा फिर नहीं होना चाहिए कि बेसिक्स में प्रॉब्लम है. एलसीएम कितना है? 120, राइट? So assume 120. So this is giving 5 units per day, 4 units per day, and 3 units per day. Fine. Now what to do? What to do? अब बोला है begin the work together. ठीक है, तीनों को ले लेते हैं. But see left 4 days before the completion of the work. अभी ध्यान दोगे, this is a type before the completion, मतलब left before the completion of the work. ऐसा क्वेश्चन कभी भी हो तो आप क्या करोगे? ये जो लास्ट के 4 days है, अगर सी छोड़ देता है तो लास्ट 4 days में कौन काम करेगा? So A and B worked. So we can calculate work done in last 4 days. Work done in last 4 days. वो क्या हो जाएगा? Equal to A and B are working. So A and B 5 plus 4 into 4. That is 36 units. So last 4 days में 36 units work is done. What is the remaining work? And this remaining work is completed by all three, since all three have started the work. So this is the fundamental. Whenever you get a question like this, how much? 40. So this is 84 divided by 12. So 7 days. So क्या पूछा? Remaining or total? How many days the work was completed? Total days taken. पहले 4 दिन ये वाले, सॉरी पहले के 7 दिन, एंड देन आखिर के 4 दिन. ठीक, फर्स्ट 7 days, लास्ट 4 days. So a total of 11 days are needed to complete the work. Execute हो जाएंगे. But this method is very very fast and very easy to execute and receive your answer. आगे बढ़े. ओके, अब हमने लास्ट डे वेज वाले क्वेश्चंस देख लिए थे वैसे. ओके, लेट मी सी इफ आई कैन गेट अनदर क्वेश्चन लाइक दिस. Okay, first we will practice and then we'll move to another type. चलो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन ले रहे हैं. लास्ट डे हम ऐसा पढ़ चुके हैं, ये कुछ नया नहीं है, हमने लास्ट डे ऐसा किया था, तो ये उसी का एक्सटेंशन है प्रैक्टिस. बट नाइस क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आया है. Do it and then we will explain. लास्ट टाइम तो एक और क्वेश्चन किया था, तो उसके मैंने 3 मेथड्स बताए थे, तो मैं एक और दे रहा हूँ ताकि कोई भी एक मेथड से यू गाइस विल बी सॉल्विंग इट एंड टेलिंग मी द आंसर. चलो डिस्कस करते हैं. चलो देखते हैं. P is 30% more efficient than Q, राइट? तो क्या हो जाए? बोलो कौन है ओरिजिनल, इस पे कौन डिपेंडेंट है? तो अगर Q को Q इज ओरिजिनल ना, तो अगर Q को 1 मान लेते हैं तो P हैज टू बी 1.3. तो मुझे पॉइंट हटाना है, तो रादर अज्यूम दिस एज 10. कैन आई से दिस इज 10 यूनिट पर डे, दिस इज 13 यूनिट. तो P हैज टू बी 1.3. तो मुझे पॉइंट हटाना है, तो रादर अज्यूम दिस एज 10. कैन आई से दिस इज 10 यूनिट पर डे, दिस इज 13 यूनिट पर डे. Did you understand? Q की value I could have taken 1, 1.3, but point. So either take 10, it will become 13, 20, 26, 100, 130. You take any number, you assume any number for Q and P, and you'll be getting the same answer. अब पूछा गया how much time will they working together take to complete a job which is which. अब ये देखो, मैंने 2 बातें बताई थी, टोटल अपॉन एवरी डे का वर्क. यही सिखाया था ना, अगर ये पता है तो आंसर आ जाता टाइम का. तो टोटल वर्क कहां से आएगा? बोल रमेश, P alone could have done in 23 days. तो 23 days का P का काम इज टोटल वर्क upon together. I mean 13 plus 10. So you see, तो सांजल कहां पे गलती हुई है? मतलब क्वेश्चन को मैंने किया क्या? मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया, पर कितना इजी नंबर है, देख रहे हो? ये नंबर देखो कितना इजी है, एंड सॉल्व कर रहा है झटके में. तो एग्जाम में नंबर अच्छे आते हैं, बस हम देख नहीं पाते. मैंने इस इंग्लिश को बड़े ध्यान से पढ़ा और जो जो बोला उसको अच्छे से डिकोड किया है. अगर आप ये कर सकते हो तो आपका क्वेश्चन, so basically the learning, the moral is that you have to learn to comprehend the data in a nice way, right? Comprehension is very important.
Let's look at question number 2 to have a better understanding now. A is 3 times faster than B. Same logic. So B is doing 1 unit per day. A is completing 3 units per. और हमने इसके कई सारे मेथड सीखे थे. एक मेथड सीखा था A can finish 32 days less. तो if A is taking T days, B is taking T plus 32 days. सीखा था ना? तो टोटल वर्क यहां से हम निकाल सकते हैं कि T into 3 is equal to T plus 32 into 1. सॉल्व करेंगे तो T equal to 32, so T equal to 16. Understood? Now we learn this method. Now, if we put the value of T in either left side LHS or RHS, we will get our total work, and that has to be finished if both are working together. So क्या हो जाएगा? Total upon both. So total हमने देख लिया. T है, T की जगह 16 into 3 divided by कितना है A plus B, that is 3 plus 1 or 4 जा. So finally you are getting. Is it clear? Is it clear? Anyways, hope you cover from further, right? और मैंने क्या बताया था याद है? मैंने रेशियो ले लिया था एफिशिएंसी ऑफ ए टू एफिशिएंसी ऑफ बी. सो मैंने टाइम का रेशियो बोला था इनवर्सली होता है, याद है? फिर मैंने सीखा था ये जो गैप होता है, ये गैप है 2 का, और 2 का गैप इज गिवन एज 32 डेज. सो 1 इक्वल टू 16 डेज. ठीक है, तो ये आ गया देखो 16 डेज. अब हम बोल सकते हैं कि 3 यूनिट रोज काम होता है तो 16 दिन में होता है, या 1 यूनिट रोज होता है तो 3 का मतलब 48 डेज. सो आइदर में सेम लॉजिक हो गया, टोटल अपॉन ए प्लस बी. सो टोटल हमारा 3 into 16 डिवाइडेड बाय 3 plus 5. जो मेथड पसंद है उससे बनाओ, दोनों मेंटली बनने वाले, पेपर पेन की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से हम कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. एनीवन हैविंग डाउट? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. पेज चेंज कर रहा हूं, नोट कर लियो सभी. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव नोटेड इट. अब बहुत कुछ सीख लिया हो तो थोड़ी सी पेस को मेंटेन करते हैं, स्पीड ज्यादा. सो 1 मिनट दिया, फिर मैं बता दूंगा. समझने की कोशिश करोगे, नोट करने की कोशिश करोगे. चलो लेट्स डिस्कस. 1 मिनट दे दिया. A can do a work in 24 days. B is 20% more efficient than A. ठीक है, ध्यान से समझो. 20% more efficient than A. So if A is doing 100 units of work per day, B has to finish how much? Efficiency of A is to efficiency of B is nothing but 100 is to 120. Can you say that is nothing but 5 is to 6? Can you say that? So can we say time taken by A, so time taken by B is nothing but 6 is to 5? So हमें A की वैल्यू दी हुई है. That means 6 की वैल्यू गिवन है, 6 equal to 24. So can't we find 5 equal to? Is it clear? So the time taken by both A and B is now known. ठीक है? This is 20. ठीक है? And C का टाइम भी हमें पता है. अच्छा 10 more days than B. 30 days. अब बोला है कि find the time taken by A and C together to complete the work. Right? तो टोटल वर्क क्या होना चाहिए? 24 दिन टोटल. ये देखो टोटल वर्क तुम्हें ऑलरेडी पता है. टोटल वर्क कितना है? ये 24 दिन. अच्छा यार चलो कैलकुलेट कर लो अपने मेथड से. अब आ जाओ, एलसीएम ले लो तीनों का. वैसे तो ये पता है तो तुम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो रेशियो वाइज. इफ दिस इज 5 की वैल्यू राइट है तो तुम प्रोपोर्शनेटली निकाल सकते हो. या अगर टाइम है 4:5 सॉरी द टाइम का रेशियो 6:5 राइट. टोटल वर्क तीनों पे डिपेंडेंट कर रहा है ना. एक में तीनों डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा एक पे दूसरा नहीं है. समझ में आ रही है बात? बी का टाइम हो गया, ए का टाइम हो गया, सी का टाइम हो गया. तो ये आपका टोटल वर्क अगर एक भी मिस करोगे तो मिस हो जाएगा. तो ये एलसीएम आ गया 120 यूनिट. तो टोटल अब यहाँ से इंडिविजुअल आ जाएगा. दिस 4 यूनिट, 6 यूनिट, दिस 5 यूनिट. इट इज आस्किंग टोटल अपॉन ए प्लस सी. सो हाउ मच टोटल इज 120. फ्यू सेकंड्स आर लेफ्ट, नोट इट. एंड ए प्लस सी, ए कितना है? 5 प्लस सी 4. सो 120 अपॉन 9 दैट विल गिव यू हाउ मच? 13 9 117, 13 and 3 by 9 that is 13 and 1 by 3 days. Is it clear to everyone?